Good evening, everyone. This is Muskan Valwani, your educator, trainer, speaker, and owning EduCreate, where talent meets excellence. As you all know, the motto of our talk show is women empowerment, but today we keep it as our topic of the day. Here I have invited our special guest, Dr. Janvi Chandwani, ma'am, for presenting her views and opinions on women empowerment as she is working on it. First of all, before moving to our topic, I want to introduce our guest that from where she had started our journey. संगीता चंदवानी भोपाल से लेकर डॉक्टर जानवी चंदवानी इंदौर का सफर बहुत ही स्ट्रगलिंग रहा। हौसले बुलंद, आंखों और दिल में हमेशा कुछ करने की चाह ने यह सफर आसान कर दिया। एमकॉम के तुरंत बाद शादी करवा दी गई। एमबीए इन फाइनेंस एंड बैंकिंग का फॉर्म भरवाया और कंप्लीट किया। 2011 में अपने फादर इन लॉ से पीएचडी इन कॉमर्स किया और 2016 में कंप्लीट किया। आज कॉलेज में लेक्चरर का काम करना, यंगस्टर्स के साथ रूबरू होना, उनके लिए हर साल नए इवेंट अरेंज कराना। जानवी मैम का यह भी कहना है कि आज मैं कुछ भी पार्टनर का बहुत सपोर्ट रहा है। जब मैम कर रही थी उस समय उनके मन में गिव अप करने का थॉट आया। तो मैम ऐसा था कि आपके मन में गिव अप करने का थॉट आया था? Actually, I thought to give up this. It's a very tough task to complete the PhD. I know. लेकिन उनके लाइफ पार्टनर ने इस तरह सपोर्ट किया कि मानो फिर एक नई ताकत, एनर्जी गेन कर ली हो और आज मंजिल हासिल कर ही ली। कई बार ऐसा भी हुआ कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैम का बाहर जाना उनके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं था, लेकिन मैम ने घर और बाहर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बैलेंस किया। एज ए वर्किंग वुमेन अपने स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना, साथ ही दोनों बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारी सभी को समय देकर निभाया। तो जानवी मैम का कहना है उन वुमेन को कि अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और उसको पूरा करने में जुट जाएं। सफलता जरूर हासिल होगी। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने सपनों को आकार दें। जब आप कुछ बन जाओगे, जमाना भी आपके साथ होगा। बस थोड़ी कड़ी मेहनत और थोड़ा एफर्ट्स लाइफ में सेटिस्फैक्शन का भाव देगा। आपको प्रूव करने का पूरा है। मैम आपकी ये थिंकिंग really true. Now I am going to share some achievements, book published and event organized by Janvi ma'am. So Dr. Janvi Chandwani ma'am is a versatile woman and epitome of so many qualities. She's MCOM, MBA in Finance and Banking, PhD in Commerce. She's a director of Charismatic World of Glory. She's a founder of Sashakt Mahila Sashakt Bharat. She is it's a state president of Human Rights Social Justice Committee Women's Cell. She is a professor, placement officer, counselor, and event head at SDPS Women's College. Last but not the least, she is Mrs. India 2020. With this, she's having experience of conducting more than 50 events, national and international workshops, conferences, webinars, seminars, job fair, which providing employment opportunities to the youth and women, faculty development program, and many more. She has invited to judge some of the most prestigious contests. She has been achieved many contests and programs. Her words, when a woman succeeds, everyone succeeds. Everything is possible, you just need a focused vision. So she is awarded Star of Indore, Best Teacher Award and got the honor from Honorable Sansad Shankar Lalwani sir. With this, I want to share one more thing with you that she had organized an event that is Women's Summit 2021 at Indore Residency Club, where she said, "Jahan चाह है वहाँ राह है." After winning Mrs. India 2020 award, she had organized this event for women empowerment and how to make a woman independent.
on 27th January 2021, that is Women Summit 2021, Women Helping Women. Be Your Own Boss and Financial Freedom of Women, where she had invited some women guests, their names with the post or the position. First, Unnati Singh ma'am, that is International Beauty Educator. Second, Dr. Aradhana Chokse ma'am, Principal at SGPS. Third, Dr. Reenu Yadav ma'am, Mrs. India International. Fourth, Dr. Janak Palta ma'am, Indian Social Worker. Fifth, Aryama Sanyal ma'am, Director of Indore Airport. Sixth, Dr. Sonali Dubey ma'am, AIG Indore Zone. Seventh, Timsi Rai ma'am, Director of Advanced Academy. Eighth, Komal Kare Joshi ma'am, Director of Go Travelicious and founder of INMO, that is Indore Moms. And the second event she had organized on the occasion of International Women's Day 2021 on the 7th March 2021 at Indore Residency Club. Women Star, where Honorable Shankar Lalwani sir and Janvi Chandwani ma'am felicitate all the women who were present there or invited for their determination and efforts and who have started their career from the small age or with the struggles and now they are touching the sky. With this, 50 above national and international research papers are published, books are also published, thesis on employment prospects in soybean crops, books published on entrepreneurship, business law, business organization and communication, and principles of management. Oh, ma'am, you are multitasking and all-rounder lady. I feel glad that you not only makes our Indore, Madhya Pradesh feels proud, but India too. So thank you so much for coming on this platform. Literally, you are a perfect example for women empowerment. So you have shown us that with the homemaker, by taking responsibilities, you have fulfilled your dreams too. So now I would like to request you, ma'am, to share your views, opinions on women empowerment and share some real life facts on what you have done for empowering the women and what are your upcoming events for women empowerment. Over to you, ma'am. Thank you, Muskan. Very warm good evening to everyone. And I must say thank you, Muskan Vatlani, for inviting me on this EduRight platform. And I would like to thank you for this beautiful description about me. Thank you so much. It's my privilege to be here on this platform and to speak on women empowerment. That is like, which is my forte and interest always. Thank you so much, Muskan. Welcome, ma'am. So I would like to, you have described me completely, no need of talking about me. I would like to start with women empowerment only. So in a very simple words, empowerment, what is empowerment? I think a woman is born empowered. There is no need of that you have to empower, you have to be empowered. No, you are born empowered. So in simple words, empowerment for women can be described so that they can make their decisions about their lives and well-being in family and society. It empowers women to allow them to obtain their true rights in society actually. So I must say, don't think that you are woman and you have to be empowered. What would you do next and how could you be empowered? You need to have motivation. No, you are born empowered. Women today are CEOs, entrepreneurs, social activists, um, philanthropists, and much more. Their innovation and compassion allow them to be great leaders and inspire the next generation.
to reach greater heights than ever before, right? So I know the government and several NGOs, even my NGO and my organization are making efforts to empower women by creating awareness. But the true meaning and of women empowerment will be achieved when gender equality will be eliminated, right? We need to give equal opportunities to women for equal pay, equal respect as equal to men. Respect, love, and value yourself. Always remember to be good to yourself by taking care of yourself. Make yourself a priority, and know that it's okay. Don't feel guilty for loving yourself. Yeah, you should be selfish about yourself. Then only you can create yourself. Then you can be empowered. See, I know you have to care for others, you have to take care of others, you have to think about others, and you have to fulfill the responsibilities as you have given, and family responsibilities, work responsibilities as well. But don't feel guilty for loving yourself. First, I think you are just as important as anybody else, right? When you love yourself, when you nurture yourself, then and only you can treat others, right? So I think, first of all, love yourself. Okay, अपने बाल सहलाओ, अपने आप को देखो that you are beautiful and you are empowered woman, right? And try to go ahead always. करते रहो, चलते रहो. No, you should not stop, right? Women empowerment reminder of the day. Always respect yourself as a woman. You attract what you are, right? So be very mindful of how you are representing yourself. You want respect, you must first learn how to respect yourself, right? अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या आपको कोई रिस्पेक्ट करे, तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ फर्स्ट. ठीक है? If you want respect, you must first learn how to respect yourself first. Attracting negative attention is never a good thing. So be a woman substance, be a woman that both women and men respect, admire, and look up to. Don't disrespect yourself by lowering yourself, right? By lowering your standards and accepting just anything that comes your way, right? जो भी आपके रास्ते में आए उसको आप ग्रैब करो, अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करो एंड कीप ऑन गोइंग. ठीक है? ऐसा नहीं सोचना है कि आपको जब परमिशन मिलेगी, you will grant the permission, then only you can go ahead. If you are right, if you are true, if you want to go ahead, if you want to achieve, so you have to be yourself, you have to go ahead. Don't think about कि आपको कोई परमिशन देगा, या आप सोच रहे हो कि आपके पेरेंट्स आपकी परमिशन देंगे, या आपको इन-लॉज आपको परमिशन देंगे या बोलेंगे कि आपको ये करना है. If you are true, if you are doing right, then go ahead. Don't think about. I think what brings me pleasure or inspires me in both mind and spirit is watching a woman and strength in action. There is nothing more beautiful than you. You are the beauty, you are the strength that you have to think. So I must say कि वैसे मुस्कान ने बहुत कुछ मेरे बारे में बताया है. कई बार मुझे भी ऐसे लगता था कि मुझे इसके लिए पूछना है. डेफिनेटली यू आस्क योर पेरेंट्स व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है. सही और गलत में अगर जिस दिन आपको डिफरेंस पता चल गया,
and the people come to know about you कि you are very true at your work. जो भी आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो. आपको इंसान एक बार मना करेगा, 2 बार मना करेगा, लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हो, nobody will stop you again. So I think एक woman की अगर हम बात कर रहे हैं तो I would like to thanks my parents. They actually give me a very good education and they never stop me doing anything. And कई बार अगर कुछ ऐसा भी हुआ कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, बट एक रहता है कि जिद्दी दिल कि आप ये करना ही चाहती है और ये सही कर रही है, तो वो भी बोलना बंद कर देते हैं. इफ यू आर रॉन्ग, ठीक है, आपको आप पूरी दुनिया रोकेगी, ठीक है. सो always supported me in my studies, my education. I think thanks to those thousands of women and men to raise their voices and fought for the women education. I think हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें अपने आप को एम्पावर करने की जरूरत है? नहीं. हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वी आर नॉट इक्वल. वी आर एम्पावर्ड. इवन गवर्नमेंट हो या पेरेंट्स हो, आजकल वुमेन्स को, गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन दिया जा रहा है, बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं. तो व्हाई नॉट यू? आप अपने एफर्ट्स खुद पुट अप करो. हमेशा ये नहीं सोचो कि आपके लिए कोई आएगा, आपके लिए कुछ करेगा और आपके लिए पूरा प्लेटफॉर्म बना के जाएगा, बस आपको वहां डांस करना है. नो, you have to create the opportunities for yourself. You have to come up on that platform that you have created for yourself. ठीक है. बहुत सारे केसेस हो जाते हैं. निर्भया केस हुआ, ये केस हुआ, हम ब्लेम करते हैं किसको? गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट ने ये रूल्स नहीं बनाए, या पुलिस ऐसा नहीं करती, या वो वैसा नहीं करता. Why do we think कि कोई आएगा, हमारी मदद करेगा, हमें हेल्प करेगा और हम इन सारी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे? क्यों हम ऐसा सोचते हैं? सब कुछ हो जाता है, सारे केस हो जाते हैं, एक कैंडल जला दी जाती है कि हाँ ये इसके नाम की एक कैंडल है, कैंडल मार्च होता है, रैलीज निकलती हैं. अब क्या होगा? जो होना था हो चुका. या हम किसी को ब्लेम भी कर लेते हैं तो वो चीज वापस नहीं आएगी. राइट. सो इतनी सारे जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, सब एजुकेशन हो या करियर अपॉर्चुनिटीज हो या बहुत कुछ वुमेन के लिए हो रहा है. कहीं कुछ कॉर्नर्स में, रूरल एरियाज में अगर नहीं हो रहा है तो वहां की लड़कियां, वहां की भी बेटियां अगर जिद्दी दिल हैं, अगर वो पढ़ना चाहती हैं, अगर इफ दे आर ब्राइट, बहुत ब्राइट है पढ़ाई में, तो उनको भी वहां से कोई न कोई उठा के आगे जरूर बढ़ाता है. तो जरूरत है हमें अपने आप को उठाने की. ठीक है. And I would like to say, I would like to thank to my husband and my in-laws who never stopped me for my education and for my work. So the thing is that you have to balance your family, you have to balance working out. And I think this is our right to live. This is our right to have education. This is our right to have career choice. This is our right to do the things that we want to do for our choice. Right? तो आप जो करना चाहते हो करो, लेकिन जो भी करो वो सही करो. आपको पता होना चाहिए सही है क्या है, गलत क्या है. Nobody would stop you. तो हम कभी भी अपने आप को बेचारा नहीं बोले कि मैं गर्ल हूँ. वाई? कि मुझे एम्पावर होने की जरूरत है? नो. अपने अंदर जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है, वो सब आपके अंदर है. जस्ट नीड टू कम अप विद दीज थिंग्स. तो अब जैसे बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. अब बेटी बचा लिया, बेटी पढ़ाया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? पढ़ गई, बैठ गई, शादी कर ली, घर पे बैठ लिया, बस दैट्स इट? नो.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। या तो यू हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ, यू हैव टू कम अप विद द थिंग्स दैट यू वांट टू डू। तो हमें मतलब बोलते हैं ना, बचपन से ही एक पावर भगवान ने देके भेजी है, आपको बस उस पावर को बाहर लाना है। रेज योर वॉइस फॉर योरसेल्फ। सी, nobody is going to come up कि आपके लिए कुछ करेगा। और आप सोचो सिंपल लाइफ हो, स्मूथ गोइंग हो, सब कुछ स्मूथ हो, आपको एजुकेशन भी स्मूथली मिल जाए एंड आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी इजीली मिल जाए और आप बहुत स्ट्रांग और एम्पावर्ड हो जाओ। नो, एक सोना भी जब तपता है, जब इतने टेम्परेचर में उसको पिघलाया जाता है, तब जाके वो बनता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनको तप के बाहर निकलना पड़ता है। तो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योरसेल्फ। बहुत सारे तूफान आते हैं जो थम जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं आपके रास्ते में, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं जो आपको रोकते हैं आपके काम करने के लिए, बट आपको वो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके बाहर निकलना है। आप ये मत सोचो कि बस है वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करेगी, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ करेंगे, या कोई आके कुछ करेगा, या मुझे सब सपोर्ट करेंगे या हेल्प करेंगे। ये आप सोचना बंद कर दीजिए कि आपको कोई आपको आके कोई सपोर्ट करेगा या आपको कोई आके हेल्प करेगा। आपको अपनी मदद स्वयं करनी है, आपको अपनी हेल्प स्वयं करनी है, आपको अपने आप को आगे खुद बढ़ाना है। तो आज से ही क्यों नहीं, बेचारा या बेचारी आपको नहीं सुनना है, या आपको ये नहीं सुनना है कि मैं क्या करूं, ये नहीं हो सकता है। जब एक गांव की लड़की भी आईएएस ऑफिसर बन सकती है, जिनके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी आज की तारीख में गर्ल्स के पास, वुमेन के पास बहुत सारे राइट्स हैं। यू शुड नो अबाउट योर राइट्स एज वेल, कि आपके राइट्स क्या हैं। उसको आप पता करो कि आपके राइट्स क्या हैं, आप एजुकेशन कैसे ले सकते हो, आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। स्ट्रगल जितना भी आया, उस स्ट्रगल को देख के घबराओ मत, आप आगे बढ़ते रहो। As such, I have been working for women empowerment, जैसा कि मुस्कान ने तो बहुत कुछ बताया। अभी पैंडेमिक सिचुएशन में भी बहुत जो टाइम रहा सबके लिए एकदम ठीक नहीं रहा, बट ठीक नहीं रहा ये सोच के हम अगर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है मैंने पैंडेमिक सिचुएशन पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया, और मेरे लिए ये समय ऐसा रहा कि मैंने बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करी। Apart from education and all, as all you know that I'm an educationist, I started with the Charismatic World of Glory, and मैंने बहुत सारे इवेंट्स करवाए, ऑनलाइन इवेंट्स करवाए, ऑफलाइन इवेंट्स करवाए। जैसे सबसे पहले मैंने एक मदर्स मेनिया इवेंट करवाया, जो वुमेन एम्पावरमेंट को ही रिलेट करता है, जिसमें हमने क्या किया, पैंडेमिक अवेयरनेस को लेके हमने ये इवेंट किया था। सारी महिलाओं, सारी मदर्स को हमने अवेयर किया पैंडेमिक सिचुएशन को लेके, और उनसे भी हमने जो है अवेयरनेस के कोड्स एंड ऑल हमने वीडियोस मंगवाए। सो इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक वुमेन्स का, मदर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। फिटनेस वीक हमने एक इवेंट करवाया, जिसमें वुमेन्स हो या मेन हो, उनके लिए फिटनेस कितनी ज़रूरी है वो हमने उन तक पहुंचाने की कोशिश करी, और हमने उसके बहुत सारे सेशंस, एक्सपर्टीज सेशंस करवाए। और इसके अलावा फिर हमने जो इवेंट किया वो आपको मुस्कान ने बताया है। वुमेन समिट हमने करवाया, फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वुमेन, जो 27 जनवरी को हमने करवाया। एज आई कम टू नो अबाउट दैट कि बहुत सारे टीचर्स का भी कट ऑफ हुआ स्कूल्स कॉलेजेस से, तो उनके पास अभी रोजगार नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो मैंने इसी को देखते हुए, बहुत सारे कॉल्स आते थे अभी पूरा पैंडेमिक सिचुएशन पे कि मैम जॉब नहीं है, वी वांट टू हैव जॉब, या हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो इवेंट करवाया 27 जनवरी को, वुमेन हेल्पिंग वुमेन एंड बी योर ओन बॉस,
उसमें वी केम अप विद सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड हमने charismaticworld.com में हमने जो है एक कॉलम डाला हुआ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए वुमेन्स अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उनके सीवी को देखते हुए जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगे उन तक हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, because always every year we come up with 50 plus companies for the job opportunities for the youth and as well as for the women. So ये कोशिश हमारी रही है और ये कोशिश मैंने वुमेन समिट में भी करी। इसके अलावा जो वुमेन अपना जॉब नहीं करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे वुड लाइक टू कम अप विद न्यू स्टार्टअप्स, सो उसके लिए भी हमने एक्सपर्टीज बुला के सारे वुमेन्स को हमने जो है वो सेशन करवाया, एक्सपर्टीज सेशन करवाया, जिसमें आप एक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप बिजनेस के अलावा आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, आप फिनेंस कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो वो सारी गाइडेंस जो है हमने उनको दिया। उसके बाद भी सेशन के बाद भी अगर उनको कुछ गाइडेंस की, कुछ असिस्टेंस की जरूरत है, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। जस्ट नीड टू कि आप अपना स्टार्ट करें, हेल्प करने के लिए हम यहाँ हैं। आप जॉब करना चाहते हैं, बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटीज रहेंगे उन तक हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, because always every year we come up with 50 plus companies for the job opportunities for the youth and as well as for the women. So ये कोशिश हमारी रही है और ये कोशिश मैंने वुमेन समिट में भी करी। इसके अलावा जो वुमेन अपना जॉब नहीं करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं एंड दे वुड लाइक टू कम अप विद न्यू स्टार्टअप्स, सो उसके लिए भी हमने एक्सपर्टीज बुला के सारे वुमेन्स को हमने जो है वो सेशन करवाया, एक्सपर्टीज सेशन करवाया, जिसमें आप एक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप बिजनेस के अलावा आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, आप फिनेंस कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। तो वो सारी गाइडेंस जो है हमने उनको दिया। उसके बाद भी सेशन के बाद भी अगर उनको कुछ गाइडेंस की, कुछ असिस्टेंस की जरूरत है, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। जस्ट नीड टू कि आप अपना स्टार्ट करें, हेल्प करने के लिए हम यहाँ हैं। आप जॉब करना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमसे जुड़ें। अगर आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ें। वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, राइट। सो बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से तो बेटियां आगे नहीं बढ़ती हैं, तो बेटियों को भी थोड़ा सा अपना जो है आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ती है। और आज हम बेटियों के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो स्टार्टअप्स हैं, न्यू बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। तो बस यही सब हम कर रहे हैं। वुमेनिस्टा प्रोग्राम किया हमने वुमेन्स डे पे, जिसमें हमने 101 वुमेन को हमने सम्मान किया और उस दिन दे शुड फील स्पेशल। वी ट्राई टू मेक फील देम कि आप स्पेशल हो एंड वी ट्राई टू, हमने गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए लाइक गुडी बैग्स फॉर द वुमेन एंड ऑल। तो ये है कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि एक ही दिन वुमेन्स डे होता है, हर दिन वुमेन्स डे है, बट एक दिन जो है हमने थोड़े कुछ एफर्ट्स पुट अप किए कि उस दिन उनको स्पेशल फील कराया जाए। नॉलेज सेशन भी हमने दिया, जिसमें हमने वुमेन्स को, महिलाओं को उस दिन भी यही सेशन हमने करवाया कि हाउ कुड यू बी अ एंटरप्रेन्योर, आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, नया बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बारे में भी हमने काफ़ी सारी नॉलेज दी। एज इंदौर को भी हमने, जैसे इंदौर हमेशा नंबर 1 रहा है, 4 सालों से नंबर 1 रह रहा है स्वच्छता को लेके, तो हम इंदौर से ही हैं, तो हमने ये भी कोशिश करी कि स्वच्छता का पंच लगाएं और सारी महिलाएं हम मिलके इसमें भी कंट्रीब्यूशन दें। तो हमारी कोशिश ये भी रही। सेफ सिटी इंदौर, इंदौर में कोई छेड़छाड़ ना हो, गर्ल्स को कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं हो कि जो उनको प्रॉब्लम देते हैं छेड़छाड़ को लेके या बाकी चीज़ों को लेके। तो उसको सेफ सिटी इंदौर बनाने के लिए भी हमने एक प्लेज लिया, शपथ लिया कि जहां भी हम देखेंगे कि कुछ गलत हो रहा है वुमेन के साथ, गर्ल के साथ, तो हम
ये कोशिश करें एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हम उनको कहीं पे भी हेल्प करें। और मैं ये चाहती हूँ अपने बेटों को भी आप ऐसा इस तरह से बड़ा करो, ऐसे ग्रो अप करो कि आपको हमेशा महिलाओं का, गर्ल्स का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, हेल्प करना है, एंड ऑलवेज ट्रीट देम इक्वल। तो जब मदर्स अपने बच्चों को, अपने बेटों को इस तरह से बड़ा करेंगी, ऐसा ग्रो अप करेंगी, तो मेरे ख्याल से आगे की जनरेशन या आने वाला समय वुमेन्स के लिए पूरी तरह सेफ रहेगा। आई थिंक और सब कुछ हो गया है इसमें, और मुझे क्या बोलना चाहिए? हाँ, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो जैसे आई एम अ फाउंडर ऑफ सशक्त महिला सशक्त भारत, तो मेरा हमेशा पर्पस यही रहता है कि हम महिलाओं को कैसे सशक्त बनाएं, या उनको कैसे बताएं कि आपके पास अंदर इनबिल्ट पावर है, आप अपने लिए सब कुछ कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है किसी से मदद लेने की, हेल्प लेने की। तो सबसे पहला पॉइंट है, हमें फिजिकली जो है महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे मैंने एक इवेंट जो आपको बताया, फिटनेस फ्रीक हमने करवाया, फिर हमने कुछ सेल्फ डिफेंस कोर्सेज करवाए, हमने सेल्फ डिफेंस का सेशन सांसद ऑफिस में भी हमने करवाया, शंकर लालवानी सर हमारे साथ थे, जिसमें हमने ये बताया कि लड़कियों को अपनी हिफाजत, अपनी मदद और अपनी सिक्योरिटी कैसे करनी चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो तो आप फोन करके अपने पेरेंट्स को जरूर बताओ कि आप कहाँ पर हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। आपके पास, आपके बैग में कुछ चीजें होनी चाहिए, क्लिप्स होना चाहिए, चिली पाउडर होना चाहिए, या कुछ चीजें ऐसे, जब आपको जरूरत हो तो आप अपनी मदद खुद कर पाए। आप इंतजार न करें कि कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा। तो उस वक्त इसके लिए हमने कुछ जो टिप्स होते हैं हमने गर्ल्स को दिए, और कैसे अपने आप का बचाव करना चाहिए वो भी हमने टिप्स जो है लड़कियों को दिए। तो इस तरह से फिजिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये सेशंस भी हम ओवरऑल करते रहते हैं। मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करना है वुमेन को या गर्ल्स को, उसके लिए हम मोटिवेशनल सेशंस भी करवाते रहते हैं। जैसे गर्ल्स को या महिलाओं को पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, और अगर उनके मन में कोई क्वेरीज है लेके, तो उन क्वेरीज को हम रिप्लाई करते हैं ताकि वो मोटिवेट हो कुछ करने के लिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, आपके सामने अगर कोई आ जाए, आप में फियर या डर नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों को देख के सामने वाला पलट के वापस चला जाए। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम फिजिकली मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए वुमेन को। थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियली फ्रीडम, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि हमने वुमेन समिट कराया फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वुमेन को लेके। सो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफ वुमेन को लेके हम काफी समय से जो जॉब फेयर करवा रहे हैं, एंड उसके अलावा स्टार्टअप्स कैसे करना है, ये बहुत सारे सेशंस हम करा रहे हैं। तो बस इन तीन पहलुओं पे काम करने की जरूरत है, फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। महिलाओं को, गर्ल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। यस, It's really great, ma'am. It's amazing. आपके व्यूज, आपके ओपिनियंस, लाइक अभी जो हमारा जो टॉक शो देखेंगे, जो हमारे व्यूअर्स, माइट भी उनको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंस्पायर भी करेंगी। इवन मैं ये कह सकती हूँ, सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसी बहुत गर्ल्स, बहुत वुमेन आपको देख के इंस्पायर होंगी, बिकॉज आपने फैमिली के साथ, मैं कैसे कंक्लूड करूं इसे, मतलब आपने अपनी फैमिली के साथ बाहर भी सारी चीजों को बैलेंस किया, और आज आपने, मतलब जो मैं कह सकती हूँ, अपनी मंजिल पा ही ली। जो पॉइंट लिखा हुआ है मेरे पास आपके डिस्क्रिप्शन में कि आपने वो मंजिल पा ही ली, तो लाइक मैं अभी यही बहुत, एक्सक्यूज मी मुस्कान, अभी बहुत कुछ अचीव करना पाना बाकी है। दिस इज लाइक we have not completed our journey, we have to travel always. गॉड, इसके आगे भी एक्चुअली मैम कुछ क्वेश्चंस रेज हुए थे, लाइक
15-20 क्वेश्चंस थे, बट मैंने कुछ 3 to 5 क्वेश्चंस पिकअप किए हैं। आपका प्रेशियस टाइम है, उसमें मैं आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। लाइक वी वांट टू नो अबाउट कैरिस्मेटिक वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी। कैरिस्मेटिक वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी है क्या? Exactly. Charismatic World of Glory is a company organization where we try to come up with the social topic events, women empowerment events, awareness related events, pandemic awareness events, our social responsibility awareness related events, fitness related and employment opportunities events, startups and knowledge sessions and beauty pageants, all about empowering women. So मैम, ये जो इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स के लाइक जो ये अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं जो, तो वो चीजें लोगों तक कैसे पहुंचेंगी? लाइक लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये इवेंट्स आने वाले हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन, ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स इन्हें पार्टिसिपेट कर सकें, इन इवेंट का पार्ट बन सकें? They can check my social sites. They can come to the charismatic world, charismatic.com हमारा site है. They can go through and they can come to know about our events. Okay. Second question, that is there any difference between feminism and women empowerment? See, feminism and women both same thing, but I must say feminism is a movement that advocates for social, economical, and political equality between men and women. Feminism is that thing that you feel from yourself. You feel inside that you are feminine, right? And as इतना बड़ा हमने जो भी lecture सुना है empowerment पे, women पे, so this is all about, and the empowerment of women is the process that allows the increased participation of women in all the aspects of the society. Okay. So third question is, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, but still ये question मुझे अच्छा लगा था, तो मैं पूछ रही हूँ that how do we empower ourselves as a woman? So as मैं यही कह सकती हूँ कि इसका आंसर आप पहले ही हमें दे चुके हैं, but still we want a brief answer for that. See, मैंने starting में ही यही बताया कि empower the woman. There is no need to empower ourselves. We are born empowered. ठीक है, तो एक चीज ये है कि हमें पता है वी आर बॉर्न एम्पावर्ड, बट कुछ चीजें हैं अपनी लाइफ में, अपने उसमें हमें लानी चाहिए. हमें एजुकेशन जो है उस पे हमें वी नीड टू हैव एजुकेशन. फाइंड योर पैशन कि आप क्या करना चाहते हो. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स ने बोला या हमें ये बनना है या वो बनना है. आप अपने पैशन को फॉलो करो. जो चीज आपको अच्छी लगती है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो यू विल एक्सेल. आई मस्ट से डोंट वेट अराउंड कि आपको कोई आके बताएगा. सो these are all other things and come up with the new opportunities, grab the new opportunities. You should be career oriented as well. और कभी ये नहीं समझना चाहिए कि इनइक्वालिटी है कि मेन को ज्यादा वो दिया जाता है, वुमेन को नहीं दिया जाता है. आपको अपनी पोजीशन खुद बनानी है लाइफ में. आपको ये नहीं सोचना है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है कि हमारे लिए समाज में जगह नहीं है. जगह तो आपको अपनी खुद बनानी है. आपको अपने लिए एक बोलते ना चेयर, वो खुद बनानी है. You have to create the chair of respect for yourself. You are empowered woman. Fourth and last question. Why do people consider women by their beauty but not by their strength and work? Why people appreciate their beauty but not their work? I must say, I told you that there are so many CEOs, entrepreneurs, social activists, and so many of the women are working in the corporates. They are known for their work only. They are known for their strength only. एंड ऐसे बहुत सारी वुमेन हैं जिनको हमने देखा है कि ब्यूटी नहीं है लेकिन काम के अपने जज्बे के साथ
वो इतनी आगे निकल गई हैं। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आई मस्ट से। आज मेरे सामने मुझे ये पता है कि एक लड़की कॉर्पोरेट्स में काम कर रही है, उसका चेहरा ठीक ठाक नहीं है बिकॉज उस पे एसिड अटैक हुआ था। उसका नाम है रूपाली। शी हैज बीन वर्किंग एंड उसकी एक जगह है वहां पे, शी लीड्स द कंपनी और वो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस खुद देती है। तो उसके चेहरे को देख के उसको काम नहीं दिया गया। उसके पास वो स्ट्रेंथ है, उसके पास वो स्किल्स हैं, तभी आज वो उस सीट पे है, तभी आज वो वर्क कर रही है। आई थिंक हम जो वुमेन है खुद ऐसा ना सोचे। सो वी ऑल आर ब्यूटीफुल। सबके पास अपने अपने प्लस माइनस होते हैं, सबके पास अपने स्किल्स होते हैं, सबके पास अपनी अपनी बोलना चाहिए कि बहुत सारी गुण होते हैं जो उनके पास, जो सभी के पास नहीं होते हैं। और आई मस्ट से कि एवरीवन इज यूनिक। सभी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम मेरा। आपने अभी बताया था कि जैसे निर्भया केस हुआ था या बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते हैं, बट जैसे आपने बताया था कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए, कि हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, हमें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ प्रिकॉशंस हमको लेके चलने चाहिए। तो एक चिली पाउडर है, या कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जा रहे होते हैं और पीछे से या आगे से हमारे साथ हमें कोई अटैक करता है, तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? सो मैम, जैसे सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेने के लिए हमें बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लीजिए, और प्रिकॉशंस हम सब लेकर, मतलब हमारे साथ सारे प्रिकॉशंस रहते हैं, बट उसको हम किस तरह से यूज करें अगर हमारे साथ एकदम से कोई अटैक होता है तो। अगर जैसे एसिड अटैक की हम बात करें, तो एसिड ऐसी चीज है कि उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपना हैंड भी अपने फेस पर रखेंगे तो हमारा हैंड खराब होगा अगर ऐसी कोई चीज होती है तो, या कोई भी चीज किडनैपिंग वगैरह होती है, तो उसमें हम लोग क्या सेफ्टी मेजर्स यूज कर सकते हैं? पहले तो सबसे पहली बात है, बहुत सारी चीजों का आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। उसके लिए आप एक दिन का सेशन अटेंड करें, या महीने में एक सेशन अटेंड करें, या 2 महीने में 2 सेशंस अटेंड करें। यू कैन नॉट बी स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग। आपको जरूरत है डेली ये सेल्फ डिफेंस की क्लासेस अटेंड करने की। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि सेल्फ डिफेंस में आपको बताया जाता है कि अपना बचाव कैसे करना है। वो टेक्निक्स बताते हैं कि आपको किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए। तो यू शुड लर्न। ओके, आपने सीख लिया, यू नो द टेक्निक्स, बट डेली अगर आप अपने आप के वो एक्सरसाइजेस, वो टेक्निक्स, उस सब पे वर्किंग नहीं करते हैं तो फिजिकली आप स्ट्रांग नहीं रहोगे। तो डेली एक हाफ एन आवर आप अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए जरूर अपने आप को दें, कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो कोशिश करके आप अपना बचाव खुद कर सकें। अपने बैग में, जैसे मैंने बताया, कुछ चिली पाउडर रखें कि कभी भी ऐसा कुछ अटैक होता है, निकाल के उसके ऊपर फेंक दिया। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा भागने का समय मिलेगा। ठीक है। सेकेंडली, इसके अलावा कुछ क्लिप्स होने चाहिए, कुछ पिन्स होने चाहिए कि आप सामने वाले को उस वक्त लगाओ और आप बच के भाग पाओ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें, जो ये सब चीजें हैं आपके बैग में हैं, आपको हेल्प कर पाएंगी। सेकेंडली, अगर आप कहीं जाते हो तो आपके पास फोन रहता है। आप फोन अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको करके बताएं कि आप कहाँ जा रहे हो। अगर आप घर नहीं पहुंच पा रहे हो तो उनको ये पता रहेगा कि आपने ये बोल के गए हो, तो हो सकता है आप यहाँ मिल सकते हो। तो ये सब चीजें एज ए प्रिकॉशंस यू कैन यूज। और एक दिन या महीने में 4 बार अगर आप फिजिकल फिटनेस को लेके वर्किंग करते हो तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू वर्क डेली फॉर योरसेल्फ। आप डेली हाफ एन आवर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए समय जरूर निकालें। और अभी कुछ ऐसी चीजें भी आ गई हैं जो आप अपने पास रखते हैं, तो वो आपको ट्रैक करता है। आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है कि आप कहाँ पर हो। ये सारा जो है आपके पेरेंट्स को या जिस स्कूल में जो भी आपके मेंटर्स हैं उनको पता रहता है कि आप कहाँ पे। ऐसी कुछ डिवाइसेस भी जो है बन चुकी हैं
but the final I must say, you should be strong yourself. आपको अपनी physical fitness को लेके daily workout करना चाहिए. Like wherever you are going, you have to on your GPS location also, that by that police or anyone can trace that location. Of course, you are right. We should. Okay, so thank you so much, Janvi ma'am, for coming on this platform, and thank you so much for inspiring us. आज मैं मानती हूँ कि अगर ये जो भी हमारा सेशन देखेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा. एंड ये चीज़ें एक अलग तरफ पर, बट आपकी लाइफ से, आपके स्ट्रगल से भी हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एंड लाइक जब मैं छोटी थी तब मैं अपने टीचर्स को देखकर ये सोचती थी कि मुझे इनके जैसा टीचर बनना है. बट नाउ आई एम एन एजुकेटर. अब एक एजुकेटर बनने के बाद ये लगता है कि आपको देखती हूँ, आप जैसी ऐसी वुमेन्स को देखती हूँ मैं कि ये एनजीओ रन कर रही हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो लगता है ये भी बन जाऊं, ये भी बन जाऊं. मतलब हर वो क्वालिटी मैं लेना चाहती हूँ. बट आपकी लाइफ से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. लिटरली यू आर रोल मॉडल, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी, एंड मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियों के लिए शायद आप एक इंस्पिरेशन रहोगे. सो थैंक यू सो मच. I want to say, जहाँ चाह है वहाँ राह है. You just need to have a focused vision. तो where there is a will, there is a way. तो आप ये बैठ कि मैंने अभी कर लिया, जहाँ आपके पास सेटिस्फेक्शन आ जाता है कि बस अब मैंने ये कर लिया, तो आगे क्या होता है, ब्रेक लग जाता है. तो हमेशा ये सोचना है कि मुझे आगे और बहुत कुछ करना है. सो रास्ते अपने आप खुलते हैं. Just need to have a focused vision. If you are focused, you will achieve all the goals. And ये नहीं बोलेंगे कि हम आगे जाके empowered बन जाएंगे. We are empowered, born empowered. Yes. So message for all the girls, for all the women, अपने सपनों को पंख दें. उड़ो आप जितना उड़ सकते हो. ये नहीं सोचना कि वो क्या बोलेगा या उसका परमिशन नहीं है या हमें क्या करना है. सो अपने आप को आप लव योरसेल्फ, ट्रीट योरसेल्फ. यू आर द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड ऑफ कोर्स यू आर अ क्वीन. फ्लाई. जितना आप फ्लाई कर सकते हो, जितना ऊपर आप उड़ सकते हो, उड़ो. थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. At last, a very big thank you to you. Thank you, Muskan, for this platform. It's an immense pleasure to be with you, to interact with you. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye, ma'am. Take care.